ریڈیو پاکستان ممتاز براڈ کاسٹر، نامور کمپیئر، شاعر اور ادیب طارق عزیز کی یوم وفات پر خصوصی پروگرام سنیے۔ تحریر جاوید حسین شاہ، راوی نزاکت شکیلہ۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ سامعین، یہ آواز تھی ملک کے معروف صداکار، کمپیئر، اداکار، شاعر اور ہمہ جہت شخصیت طارق عزیز کی۔ طارق عزیز ہم میں نہیں رہے، مگر ان کی آواز، ان کا لہجہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ لیکن جب میں سٹیج پر آتا ہوں اور کیمرہ سرخ آنکھ سے مجھے گھورتا ہے، اس وقت میں 25 سال کا فٹ آدمی، ہائے ہائے استاد دامن یاد آ گیا، کہنا کہ سٹیج تے ہوئیے تے اسی سکندر ہونے ہیں، سٹیج تو تھلے اتریے تے کلندر ہونے ہیں۔ طارق عزیز 28 اپریل سن 1936 کو جالندھر، برطانوی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد میاں عبدالعزیز پاکستانی سن 1947 میں پاکستان ہجرت کر آئے اور ساہیوال میں سکونت اختیار کی، جہاں طارق عزیز نے ابتدائی تعلیم ساہیوال سے ہی حاصل کی۔ بعد میں تلاش معاش کے لیے لاہور کا رخ کیا۔ طارق عزیز ابتدا میں اداکار بننا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس لیے لاہور میں موجود نگارخانوں کے چکر لگانا شروع کر دیے، مگر ان کی آواز میں موجود بلند پچ اور بیس کی باعث ان کے دوست انہیں ریڈیو پاکستان لاہور لے آئے، جہاں ان کی صداکاری کا آڈیشن ہوا اور پھر انہیں ریڈیو پاکستان لاہور کے ڈراموں میں کام ملنا شروع ہو گیا۔ مگر ان کے دل میں فلم میں کام کرنے کا جو شوق بچپن ہی سے تھا، وہ اس کی تکمیل کے لیے ابھی بھی نگار خانوں کے ارد گرد پھرتے تھے، جہاں انہیں متعدد فلموں میں چھوٹے کردار ملنے شروع ہو گئے۔ زندگی کے راستے بڑے دشوار گزار ہوتے ہیں، ذرا سنبھل کر پاؤں رکھا کیجیے۔ بہرحال اب میں چلتا ہوں، آپ آرام کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جمیل صاحب، آپ نے میرے لیے بڑی تکلیف اٹھائی۔ تکلیف کاہے کی؟ یہ تو میرا انسانی فرض تھا۔ لیکن آج کل آپ جیسے انسان کہاں ملتے ہیں؟ کوئی ڈھونڈے تو مل ہی جاتے ہیں۔ جی؟ میں کہہ رہا تھا کہ کسی مجبور کی اتنی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس کے بھٹک جانے کا اندیشہ ہوتا ہے نا۔ آپ بھی عجیب ہیں۔ عجیب ہی نہیں، غریب بھی ہوں۔ ریڈیو ٹی وی کے معروف فنکار عرفان کھوسٹ نے طارق عزیز کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کچھ یوں کیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ طارق عزیز جو کہ دوہری شخصیت کے مالک تھے، کہ جب وہ بولنے پر آتے تھے تو وہ سکندر ہوا کرتے تھے اور عام زندگی میں قلندر ہوا کرتے تھے۔ کیا بات کروں، اتنے بڑے شخصیت کے بارے میں مجھ جیسا کتنی بڑی بات کر سکتا ہے۔ طارق عزیز کے فن کو ریڈیو پاکستان لاہور کے اساتذہ نے تراش کر ہیرے کی شکل دی۔ ان کی آواز میں موجود بیس ریڈیو کے پلیٹ فارم کی ضرورت بن گئی اور وہ تقریباً ریڈیو پاکستان کے بہت سے پروگراموں کی کمپیئرنگ بھی کرنے لگے اور ڈراموں میں صداکاری بھی۔ اسی دوران سن 1964 میں جب پاکستان ٹیلی ویژن کا قیام عمل میں آیا تو یہ طارق عزیز ہی تھے جن کو پی ٹی وی کی پہلی اناؤنسمنٹ کے لیے منتخب کیا گیا، اور یہ اناؤنسمنٹ یوں تھی: پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے طارق عزیز آپ سے مخاطب ہے۔ خواتین و حضرات، آج جمعرات ہے اور نومبر کی 26 تاریخ۔ آج کا یادگار دن پاکستان میں ٹیلی ویژن کے حوالے سے ایک تاریخ ساز دن ہے۔ آج وہ دن ہے جب اپنے اس لاہور میں، اس شہروں کے شہر میں، اس کالجوں کے شہر میں، اس باغوں کے شہر میں، اس پھولوں کے شہر میں پاکستان ٹیلی ویژن اپنی نشریات کا آغاز کر رہا ہے۔ طارق عزیز ہمہ جہت شخصیت تھے۔ میں آج کا بیت بازی کا مقابلہ مختار صدیقی مرحوم کے نام کرتا ہوں۔ ان کا ایک شعر یاد آ گیا کہ نکتہ وروں نے ہم کو سجھایا،
खास बनो और आम रहो, महफिल महफिल सोहबत रखो, दुनिया में गुमनाम रहो। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए उन्हें पहला ब्रेक थ्रू फिल्म इंसानियत से सन 1967 में मिला। इसके बाद उन्होंने मशहूर फिल्में सालगिरह, कसम उस वक्त की, कटारी, चिराग कहाँ रोशनी कहाँ, हार गया इंसान जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी से फिल्म बीनों को महसूस किया। तारिक अजीज़ की वजह शोहरत सन 1975 में शुरू किए जाने वाले उनके स्टेज शो नीलाम घर से बनी और अपनी वफात तक कमोबेश 40 साल तक वो इस प्रोग्राम से बतौर कंपेयर वाबस्ता रहे। नीलाम घर और तारिक अजीज़ एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम थे और यही वजह है कि इस प्रोग्राम को बाद में बज़्म तारिक अजीज़ का नाम दे दिया गया। इस प्रोग्राम को बिलाशुबा बरे सगीर पाक व हिंद में ज़हनी आजमाइश के प्रोग्रामों का बावे आदम गर्दाना जाता है। पाकिस्तान का कौमी गिरफ्त देवदार को कहा गया, जवाब दुरुस्त है, तशरीफ लाएं। मुल्क के मारूफ गुलकार अताउल्लाह ईसा खेलवी ने तारिक अजीज़ को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा, शान बहुत बड़ा था वो मेरा, तो वो रूहानी बाप कहने आप उसे, उसने पहली दफा मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया और मुझे मेरी हौसला अफजाई की और उसके बाद मुसलसल वो मेरे साथ राब्ते में रहे। अल्लाह ने गरीक रहमत करे और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं कुछ थोड़ा बहुत आपकी दुआओं से यहाँ तक पहुँच सका। अंदाजा कर लें कि 73 में पहली दफा मैं ऑन एयर गया नीलाम घर में, उस वक्त ब्लैक एंड व्हाइट था कराची से, तो इस इनके प्रोग्राम से, और उसके बाद से तो मुसलसल वो मेरे साथ राब्ते में रहे। सबसे पहला गीत था सरायकी का था, बेपरवाह ढोला क्यों दिते साकू रोल, ये उस वक्त कराची से प्रोग्राम ऑन एयर जाता था। और सबसे आखिरी अभी जो लास्ट प्रोग्राम हमारा इकट्ठा हुआ उसमें था कि छोड़ लाहौर के बंगले ढोला, चंगा है अपना शार, मियां वाली वजह मेरे यार, इस तरह का गाना था। और उन्होंने जो मुझे इज्जत दी, जो मुझे प्यार दिया, जो मुझे रहनुमाई दी, वो मुझे इस फील्ड में क्या अपने खानदान से या अपनी फील्ड में किसी और से नहीं मिल सकी। तारिक अजीज़ एक इल्म दोस्त शख्सियत होने के हवाले से खुद भी कलम को अपने इजहार का जरिया बनाते रहे हैं। इनका मुतालिया बहुत वसी है, उनको हजारों अशार ज़बानी याद थे। क्या लोग थे कि जो गमे जाना में मर मिटे, क्या लोग थे कि जो गमे जाना में मर मिटे, ए रोजगार क्यों तेरी गर्दिश न थम गई। रंग गुस्से का अलग और अलग प्यार का रंग, कोई देखे तो सही आके मेरे यार का रंग। सोचता हूं तो खौफ आता है, क्या बनेगा मेरी मोहब्बत का, सुनने वाले सुनेंगे किस दिल से, तुम हो उन्वान जिस हकीकत का। क्यों सबा की न हो रफ्तार गलत, गुल गलत, गुंचे गलत, खार गलत, एक दरिया है बस अपने रुख पर, कश्तियां आर गलत, वार गलत, वक्त उलट दे न बिसाते हस्ती, चाल हम चलते हैं हर बार गलत। क्यों सबा की न हो रफ्तार गलत, गुल गलत, गुंचे गलत, खार गलत। कि नुक्तावरों ने हमको सुझाया, खास बनो और आम रहो, महफिल महफिल सोहबत रखो, दुनिया में गुमनाम रहो। उसको खबर नहीं कि मैं उसका नहीं रहा, किस खुश सलीकगी से बगावत करूं हूं मैं, इन बेहकीकतों से कहूं भी तो क्या कहूं, ये भी करम समझ के जो हूं करूं हूं मैं। आखिर दिल की पुरानी लगन
करके ही रहेगी फकीर हमें। हर रुत आते जाते पाए एक ही शय का असीर हमें। ये जो दीवाने से दो चार नजर आते हैं, इनमें कुछ साहिब असरार नजर आते हैं। उनके कॉलमों में एक मजमुआ दास्तान के नाम से और पंजाबी शायरी का मजमुआ कलाम हमजाद दा दुख शाया हो चुका है। उन्होंने न सिर्फ उर्दू बल्कि अपनी मादरी ज़ुबान पंजाबी में भी शायरी की है। इनके चंद अशार मुलाजा हों। जे हर्फ औखे मैं पढ़ नहीं सकदा ते फिर जग दी किताब कीए, ऐ सारे धोखे यकीन देने नहीं ते शाख गुलाब कीए, ऐ सारी बस्ती अजाब विचे ते हुक्मे आली जनाब किए। जबकि उर्दू की एक आज़ाद नज़्म से इक़्तिबास है लिखते हैं, दोस्त ये तो की है तूने बच्चों की सी बात, जो कोई चाहे पा सकता है खुशबुओं के भेद, इसमें दिल पर गहरे दर्द का भाला खाना पड़ता है, हंसते बसते घर को छोड़ के बन में जाना पड़ता है, तन्हाई में अफरीतों से खुद को बचाना पड़ता है, खुशबू घर के दरवाज़ों पर काले रास रचाते हैं, जो भी वहाँ से गुजरे उसको अपने पास बुलाते हैं, जहर भरी फुनकार से उसके जी को खूब डराते हैं, जो कोई चाहे पा सकता है खुशबुओं के भेद। इस नज़्म के बारे में तारिक अजीज़ ने एक जगह लिखा था, ये कॉलेज के दिनों की बात है, मिंटगोमरी में कोई मुशायरा था, नून मीम राशिद इसकी सदारत कर रहे थे। मजीद अमजद साहब और मुनीर न्याजी साहब की अदबी मजलिसों में बैठने की वजह से शायरी का लपका मुझे भी लग चुका था। चुनाचे मैंने भी मुशायरे में ये नज़्म पढ़ी। नज़्म पढ़ के उठा तो नून मीम राशिद उठे, मेरे पास आए, मुझे थपकी दी और कहा, बहुत अछूती नज़्म है नौजवान, लिखते रहो, लिखना ना छोड़ना। उनकी इस बात पर मेरा हौसला बढ़ा, मगर मैंने उर्दू की बजाय पंजाबी ज़ुबान में शायरी को तरजीह दी, क्योंकि पंजाबी माँ बोली थी। तारिक अजीज़ की फ़न की बड़ी खूबी कॉलम निगारी भी थी। उन्होंने एक जरीदे का आगाज़ भी किया और उसमें सियासी, समाजी, फिल्मी, अदबी और स्पोर्ट्स की मशहूर तरीन शख्सियात के इंटरव्यूज़ किए, जिनको अदबी और सहाफ़ती हल्कों में पजीराई मिली। तारिक अजीज़ की फ़नी खिदमात पर उन्हें बहुत से सरकारी और गैर सरकारी अवार्ड से नवाजा जा चुका है। अब एक तो मुझे उस प्रोफेसर की बात याद आती है जिसकी सबसे आखिर में बारी आई थी तकरीर की। उसने कहा कि चूंकि मेरी सबसे आखिर में बारी आई है, इसलिए मैं 2 तकरीरें करूंगा। मेरी पहली तकरीर जरा छोटी होगी, दूसरी तकरीर जरा लंबी होगी। पहली तकरीर यह है कि शुक्रिया, और दूसरी लंबी तकरीर है बहुत बहुत शुक्रिया। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी सन 1992 में उनको हुस्ने कारकर्दगी के तमगे से भी नवाजा गया। तारिक अजीज़ ने सियासत में भी हिस्सा लिया और सन 1997 में कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। इनका इंतकाल 84 साल की उम्र में लाहौर में हुआ। पाकिस्तानी सहाफ़त, इल्म अदब और शोबिस की तारीख़ तारिक अजीज़ के तज़किरे के बग़ैर नामुकम्मल तस्वर की जाएगी, और जब भी इस हवाले से तारीख़ मुरतब की जाएगी तो उसमें तारिक अजीज़ का नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। यूं लग रहा है जैसे अभी लौट आएगा, यूं लग रहा है जैसे अभी लौट आएगा, जाते हुए चराग बुझा कर नहीं गया। अभी आपने मुमताज़ ब्रॉडकास्टर, नामवर कंपेयर, शायर और अदीब तारिक अजीज़ की यौम वफ़ात पर ख़ुसूसी प्रोग्राम सुना। रावी नज़ाकत शकीला, तहरीर और प्रोड्यूसर जावेद हुसैन शाह, और ये पेशकश थी रेडियो पाकिस्तान लाहौर की।